like to thank UGC HRDC Center, and I would like to express my heartfelt thanks to Dr. CG Tethe sir, Dr. Rekha Sharma ma'am, and Dr. Preeti Dharmik ma'am for always inviting me during refreshers programs or short training programs and orientation programs. So I would like to thank from the bottom of my heart that today also I have been given a big role to play here. That is what the opportunity is being given to me. So I'll try my level best to share my experience, share my knowledge with you. I'm a very little girl in front of you all. We all are having a very senior degrees like doctorates, MPhil, DLit, etc. But yes, I am here to share with you my little experience so that we can have a very collaborative learning today. So thank you all. So now I'll be starting with my session. तो सबसे पहले हम देखते हैं Google Classroom exactly है क्या. So हम सभी को पता है कि we are having only 5 components of online teaching, right? So 5 components of online teaching जो है उसमें है सबसे पहला learning management system, then is video recording, e-content, then is live class interactivity, then is student engagement और आखिरी में आता है assessment and evaluation. टीचर्स का रोल कॉम्प्लेक्स तब हुआ था जब कोविड-19 शुरू हुआ था. ऑनलाइन टीचिंग का बेसिकली क्रेज अगर हम देखें तो हमारे लिए तब आया जब एक्चुअली हमारे सामने कोविड की सिचुएशन आई, जब फिजिकल क्लासरूम कंप्लीटली ऑफ हो चुके थे एंड वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विद द ऑनलाइन टीचिंग. एंड स्टिल टुडे वी कैन से दैट हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग इज गोइंग ऑन इन अवर कॉलेज, इन अवर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे कुछ बच्चे फिजिकली अटेंड करते हैं, but yes, those who cannot come because of some or other reason, due to their jobs, due to their other commitments, they are just doing their online classes with the help of learning management system. So first component is learning management system, जो आज हम देखेंगे in the form of Google Classroom. Second component is video recording, e-content. Third is live class interactivity. आप webex के through, zoom के through, google meet के through आप इनको कर सकते हैं. स्टूडेंट एंगेजमेंट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. साथ ही साथ हमें स्टूडेंट का असेसमेंट भी करना है, क्वेश्चन पेपर्स भी बनाने हैं, उनको इवैल्यूएट भी करना है. तो ये सारे 5 कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. अब इनमें से हम कौन सा कंपोनेंट आज टच अपॉन करने वाले हैं, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. हम सभी को पता है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक टीचर, एक फैसिलिटेटर, एक एजुकेटर क्लासेस क्रिएट कर सकता है, कोर्सेज क्रिएट कर सकता है एक वर्चुअल मोड में. तो टीचर बेसिकली क्या कर सकता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में. आप सभी ने मूडल के बारे में पढ़ा है, एडमोडो के बारे में पढ़ा है, गूगल क्लासरूम आप में से कई टीचर्स ने यूज भी किया है अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बट यस, स्टिल देयर आर सम we can say flaws or loopholes which teachers doesn't know in the Google Classroom. So we are going to see all those things one by one. So what a teacher can do, teacher class को organize कर सकता है topic wise, teacher material add कर सकता है, he or she can create assignments, we can evaluate the assignments, we can give the marking of the quizzes, we can start discussing with the students so that there should be two-way communication, not one-way communication. Final grading of a student is done also. So this is how learning platform system can help us in this way. Now what we are going to specifically learn, or I can share with you all, is that how we are going to create a Google Classroom. हम कैसे क्लासरूम क्रिएट करने वाले हैं, किस प्रकार से हम मटेरियल को अपलोड करने वाले हैं, किस तरीके से हम ग्रेड बुक को सेटअप करने वाले हैं, किस प्रकार से हम काफी सारे स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में एनरोल कर सकते हैं. लाइक 256 स्टूडेंट्स का हमारे पास मिनिमम कोटा रहता है अगर हम पर्सनल जीमेल अकाउंट यूज करते हैं. वेरएस अगर हम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक जी सूट अकाउंट यूज करते हैं तो हम 1000 बच्चों को एक क्लास में एनरोल कर सकते हैं. तो हम किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे फॉर क्रिएटिंग अवर गूगल क्लासरूम एंड हाउ टू इवेल्युएट इट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली लर्न. नाउ द अनदर टर्म जो आज की डेट में बहुत बज़वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज रूब्रिक असाइनमेंट्स. किस क्राइटेरिया पे आप असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, और स्टूडेंट को सेम क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि मुझे उस असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिले. ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एंड क्रक्स होगा हमारे आज के सेशन का. सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, डिजाइन, इवैल्यूएट रूब्रिक असाइनमेंट्स, ये भी हम देख सकते हैं. अगर आपकी क्लास में
कुछ अननोन एनोनिमस स्टूडेंट्स आ जाते हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसेबल योर क्लास कोड, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. सो dear teachers, we know that Google Classroom is one of the popular learning management system, we can say. Here teachers can easily create class, can easily distribute assignments, can easily manage all the classes at one place. आप अगर बीसीसीए का कोई क्लासरूम बनाएंगे तो उसमें बीसीसीए के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे. आपको बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है. सबसे अच्छी खास बात ये है गूगल क्लासरूम की कि ये गूगल के टूल्स के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करता है, इंटीग्रेट करता है, जॉइंटली काम करता है. आप इसमें गूगल डॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, गूगल शीट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. आपके ड्राइव में जो मटेरियल आपने 3 साल पहले अपलोड किया था, आज उसको आप गूगल क्लासरूम में एनरोल कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन इंटीग्रेट each and everything with the help of Google Classroom. So now why Google Classroom? Why not any other platform? Because Google Classroom is very easy, very user friendly to use, very easy to learn. It is freely available for teachers as well as for students. एंड इट इज अ कोलैबोरेटिव टूल. हम एक एनवायरनमेंट के साथ दूसरे एनवायरनमेंट के साथ इसका काम कर सकते हैं. मुझे फॉर्म्स बनाना है, मुझे क्विज बनानी है, मुझे बच्चों का टेस्ट पेपर लेना है और मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटेड मार्कशीट मेरे सामने आए, तो गूगल एनवायरनमेंट के साथ वो गूगल क्लासरूम बहुत अच्छे से लिंकअप होके काम करता है. इसलिए हमें गूगल क्लासरूम की जरूरत है. अब गूगल क्लासरूम को यूज करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए या हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. सबसे पहले वेदर टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उनके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए. अगर आपके पास पर्सनल जीमेल आईडी नहीं है और आपके इंस्टीट्यूट के पास एक जी सूट अकाउंट है जिसके लिए उन्होंने सम पेमेंट्स किए हैं गूगल कंपनी को एंड दे हैव आस्क्ड देम कि जी सूट अकाउंट चाहिए, तो जी सूट अकाउंट के भी थ्रू आप अपना गूगल क्लासरूम बना सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना है, पर्सनल अकाउंट में आपको गूगल मीट का ऑप्शन नहीं मिलता है कि डायरेक्टली आप क्लासरूम में जाके क्लास भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सकें. लेकिन जब आप जी सूट अकाउंट खरीदते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो आप क्लासरूम में जाके गूगल मीट भी ले सकते हैं. दैट इज व्हाट द बेनिफिट यू आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ जी सूट अकाउंट. सो लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन how we are going to create a Google Classroom. So हमारा पीपीटी अभी खत्म नहीं हुआ है, हम इसको बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आप सभी से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दो तरीके से फॉलो करेंगे. द रीजन इज, ये पहला विंडो जो आप देख रहे हैं दैट इज हैविंग द माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर. इफ यू कैन सी आइकन एट द टास्क बार, वी कैन सी देन इट इज हैविंग डिफरेंट आइकन. नाउ दिस आइकन इज गूगल क्रोम. नाउ दिस इज माय आईडी. मैं खुद को एनरोल एज ए स्टूडेंट करूंगी, तो जब कभी भी आपके सामने आर आइकन आएगा, इट इंडिकेट्स इट इज अ स्टूडेंट. जब कभी भी आपके सामने एस आइकन आएगा, इट इंडिकेट्स इट्स अ टीचर. दैट इज अ ट्रेनिंग, एसटीसी शॉर्ट टर्म कोर्स ट्रेनिंग्स के लिए मैंने ये आईडी बनाया हुआ है. तो आज हम इसको साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे कि स्टूडेंट के विंडो पे कैसे दिखता है एंड टीचर के विंडो पे कैसे दिखता है, सो दैट देयर विल बी, इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, हम मीन वाइल उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे. तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी है कि हमें अपने जीमेल में लॉगिन होना है. अब वेबएक्स को शुरू करना था, तो वेबएक्स में जब मैं यहाँ पे एंटर हो रही थी, एनरोल हो रही थी, तो उसने मुझसे जीमेल आईडी मांगी. तो जीमेल आईडी को मैं अब अगर लॉग आउट करूंगी तो मेरा वेबएक्स भी बंद हो जाएगा. तो इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक जीमेल आईडी यहाँ पे स्टार्ट करके रखी है, दैट इज training@ugc@gmail.com. All right, so this is my teacher's ID and this is my student's ID, that is rinkydamsr@gmail.com. So रिंकी मूलचंदानी, जब जब आपको देखने को मिलेगा प्लीज कंसीडर कि दैट इज अ स्टूडेंट पैनल, एंड जब जब आपके सामने ये एस आइकन आएगा दैट मीन्स इट इज अ एडमिन फॉर द टीचर्स पैनल और टीचर्स प्लेटफॉर्म. So shall we start, Preeti ma'am, with the demonstration? यस मैडम. Yes. मैम थोड़ा Yes, स्लो yes. जाइए. All right, ma'am. So shall we start now? Yes, ma'am.
Yes. Madam, please once again tell both the IDs. All right. Yes. See, the very first thing is कि हमें अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके रखना है. अब आपको बाय डिफॉल्ट मेरा जीमेल अकाउंट ऑलरेडी ओपन दिख रहा है. द रीजन बीइंग मैंने वेबएक्स पे एनरोल किया है. ऑल राइट. आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है? लेट अस से मैं यहाँ से अभी ये साइन आउट करती हूँ. ठीक है, ये मैंने यहाँ से अकाउंट साइन आउट किया. ऑल राइट. तो आपकी सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी कि आपको जीमेल पे लॉगिन रहना है. ऑल राइट. ये जीमेल पे हम यहाँ पे लॉगिन रहेंगे. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस से training@UGC यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा. ये मैंने टाइप किया. ऑल राइट. और इसका जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे टाइप किया. ऑल राइट. तो सबसे पहली हमारी जो स्टेप रहने वाली है वो है कि हम जैसे नॉर्मल मेल खोल के बैठ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमको वो स्टेप सबसे पहली करनी है. अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ऑल राइट, तो आपके पास एक दूसरी स्टेप है. और वो दूसरी स्टेप ये है कि आप डायरेक्टली ये जो URL ID दिया गया है classroom.google.com, अगर आप इस URL ID पे जाते हैं, मतलब classroom.google.com, आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रही हूँ classroom.google.com, तो आपका अगर जीमेल ओपन किया हुआ रहेगा तो वो डायरेक्टली आपको इस वाइट इंटरफेस पे लेके आएगा. सो इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? शैल वी मूव अहेड? यस. सो द फर्स्ट स्टेप इज आप दो तरीके से जा सकते हैं. पहली स्टेप के दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है कि आप अपना जीमेल की आईडी ओपन करके बैठ जाइए. तो ये आपको मेल दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड है, सेंटर में सारे मेल्स ओपन किए गए हैं. ऑल राइट. अब आपको करना क्या है? पहली स्टेप से अगर आप जाते हैं तो आपको क्या करना है, और दूसरी स्टेप से जाते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप ये पहली स्टेप से जाएंगे, सबसे पहली स्टेप है कि जीमेल में लॉगिन कीजिए. तो आपने जीमेल में लॉगिन कर दिया. अब दूसरी स्टेप है, ये जो गूगल एप्स है, ये 9 डॉट्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, इनको आप सिंपल क्लिक करेंगे. ऑल राइट. आप इनको सिंपल क्लिक करेंगे. आपने जैसे ही इसको क्लिक किया, आप जैसे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यहाँ पे आपको एक क्लासरूम आइकन मिलेगा. क्लासरूम आइकन मिलेगा. तो जब आप इस क्लासरूम आइकन को ओपन करेंगे तो आप वही वाइट इंटरफेस देख रहे हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था. ऑल राइट. ये दोनों मेरे क्लासेस के टैब्स खुले हुए हैं. मैं एक टैब को बंद कर देती हूँ. तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? दैट इज वी हैव टू लॉग इन टू अवर जीमेल अकाउंट जिससे गूगल क्लासरूम बनाना है. ऑल राइट. वो जीमेल का आईडी आपका कोई भी रहे, इट्स ओके. आपके कॉलेज ने दिया है वो भी चलेगा, आपके पास खुद का जीमेल आईडी है वो भी चलेगा. देन आपको ये 9 डॉट्स पे क्लिक करना है. 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लासरूम करके ये जो ऐप है, आपको इसको क्लिक करना है. तो जैसे ही आप क्लासरूम ऐप को क्लिक करेंगे तो आप ये वाइट इंटरफेस पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन बता रहा है. पहला है क्रिएट क्लास, दूसरा है ज्वाइन क्लास. क्रिएट क्लास टीचर करेगा, ज्वाइन क्लास स्टूडेंट करेगा. ऑल राइट. जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं तो एक टीचर या एक एडमिन या एक फैसिलिटेटर या एक एजुकेटर ही क्रिएट कर सकता है. लेकिन ज्वाइन क्लास करते समय जिस भी पार्टिसिपेंट को लिंक भेजी गई है या क्लासरूम का कोड भेजा गया है वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली ज्वाइन करेगा. तो ये तरीके आपके पास दो है. या तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कीजिए क्रिएट क्लास से, या तो फिर आप ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ही दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं. यस. कैन वी मूव अहेड? यस. हेलो. Yes, ma'am. यस यस यस. सो आप बीच बीच में मुझे मोटिवेट करते रहिए बिकॉज मैं आप सभी से छोटी हूँ. मैम. हाँ जी सर. मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा स्लो बताइए, स्लो बताइए. जी जी सर, अभी शुरू नहीं किया है सर, अभी करने की हूँ. हाँ जी सर. ओके. हाँ हाँ. ऑल राइट.
तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, हम जीमेल पे जाएंगे, ये हमारी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारी क्या रहेगी, हम गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट। थर्ड स्टेप हमारी क्या रहेगी, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके। फोर्थ स्टेप हमारी क्या रहेगी, हम इस आइकन पे, क्लासरूम आइकन पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? यस यस। ये 4 स्टेप होने के बाद अब मुझे क्लास को क्रिएट करना है, जो कि आज के आपके असाइनमेंट में है। तो आपके असाइनमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल में लॉगिन करना पड़ेगा। आपको ये 9 डॉट्स में आना पड़ेगा। 9 डॉट्स में आने के बाद आपको क्लासरूम को क्लिक करना पड़ेगा। क्लासरूम को क्लिक करने के बाद या तो आप प्लस साइन के थ्रू क्रिएट क्लास पे क्लिक कीजिए, या तो आप डायरेक्टली क्रिएट क्लास पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही हम क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे, वहां पे हमसे एक कंडीशंस एंड टर्म्स की चेकबॉक्स पे क्लिक करने के लिए गूगल क्लासरूम पूछेगा। हमें सिंपल क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे सिंपली क्लिक करना है। हमें इस चेकबॉक्स पे सिंपली क्लिक करना है एंड फाइनली हमें कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है। ऑल राइट, कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है। अगर आपको नहीं समझा अभी भी, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। आप या तो प्लस साइन के थ्रू क्रिएट क्लास पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद ये चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब कंटिन्यू बटन जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब नीचे के 3 ऑप्शंस आपके लिए ऑप्शनल हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपके लिए कंपलसरी है। तो मैं एक क्लासरूम बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है MEF, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स। मैं एक इकोनॉमिक्स का क्लास बनाने जा रही हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ये BBA का क्लासरूम का क्लास है, तो मुझे BBA का एक क्लासरूम बनाना है। तो मैंने वहां पे अपने सब्जेक्ट का नाम लिखा, अपने कोर्स नेम का नाम लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ENG लिख सकते हैं, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो BE लिखिए, आप कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट के बारे में लिखिए। आपका जो सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से अपना क्लास का नाम बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, BBA Sem 2 MEF। ऑल राइट, BBA के सेमेस्टर 2 का MEF सब्जेक्ट का मैं क्लास बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास नेम में ये लिखा। एक बार आपने क्लास नेम लिख लिया, उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। ऑल राइट, जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने एक इंटरफेस तैयार हो गया। दैट मीन्स एक स्क्रीन अब आपके सामने, एक फ्रंट स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यस और नो? यस, हेलो एवरीवन। Yes, yes, yes yes yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the first screen जो आपके सामने कैसे आई, जब आप सिंपल 9 डॉट्स में गए। 9 डॉट्स में जाने के बाद क्लासरूम पे आपने क्लिक किया। क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद प्लस साइन पे क्लिक किया। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लास पे क्लिक किया। क्रिएट क्लास पे क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक किया। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम लिखने के बाद आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया। तो अब जब आप देख रहे हैं कि मैंने एक और क्लासरूम आपके सामने बनाया है, दैट इज नोन एज MEF। क्या आप सभी देख पा रहे हैं ये क्लासरूम का नाम MEF? यस और नो? यस Yes, ma'am. यस। अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। आज के आपका जो पहला असाइनमेंट है वो ये है कि हम क्लासरूम का कोड कैसे शेयर करते हैं। तो कोड शेयर करने के पहले, सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन की जानकारी दे देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो ये मेन मेन्यू देख रहे हैं 3 लाइन का, इसको बोलेंगे डैशबोर्ड।
आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लासेस का होम टैब देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, क्लासरूम के नाम देखते हैं, MEF करके क्लास है, BBA SEM2 करके क्लास है। तो अगर मैं यहाँ से किसी भी क्लास को क्लिक करती हूँ तो वो पर्टिकुलर क्लास मेरे लिए यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऑल राइट, तो अभी मैं एट प्रेजेंट कहाँ पे हूँ, जो सिलेक्टेड है। अब मैं वापस से MEF क्लास में ही आ जाती हूँ। ऑल राइट, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड में क्लासरूम के नाम के साथ, होम टैब के साथ, हमारे पास एक सेटिंग्स नाम का टैब है, जो कि गूगल क्लासरूम मैंने अभी बनाया जिस नाम से, उसकी सेटिंग्स के बारे में बताएगा। तो हम यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं। या तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए और उसके सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, या तो आप राइट हैंड साइड में ये जो गियर आइकन देख रहे हैं 9 डॉट्स के बाजू में, इसको क्लिक कीजिए। जब आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पेजेस में सेटिंग्स कुछ उस प्रकार से आई। ओके, तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी प्रोफाइल को रिलेटेड सेटिंग है, कमेंट्स को रिलेटेड सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन को रिलेटेड सेटिंग्स है। आपकी गूगल क्लासरूम में कमेंट्स पोस्ट पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, मतलब जो आपकी वॉल है, ये जो आपकी वॉल है क्लासरूम की, ऑल राइट, ये जहाँ पे आप अभी थे, यहाँ पे बच्चे आपके लिए कमेंट्स पोस्ट करें या ना करें, अगर आपको ऐसी कोई सेटिंग्स ऑन एंड ऑफ रखनी है तो आप सिंपल सेटिंग्स टैब में जाके उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। प्राइवेट कमेंट्स दें या ना दें, जब कभी भी आप क्लासरूम में कोई मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट ने प्राइवेटली कमेंट करना है या नहीं करना है, ये सब भी सेटिंग्स आप करेंगे। लेकिन ये सारी सेटिंग्स ऑन ही रखिएगा, बिकॉज ये हमारे गूगल क्लासरूम में क्यों काम में आती है कि कौन सा स्टूडेंट लेट सबमिशन मुझे असाइनमेंट दे रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए किस स्टूडेंट ने दोबारा से अपना काम किया, कौन से टीचर जो अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या मैं उन्हें इनवाइट कर सकती हूँ, तो आंसर इज ऑलवेज यस। इसलिए ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट जैसी की है, जैसी आपको स्टार्ट की गई देखने को मिल रही हैं, उसी प्रकार से आप इसको रखेंगे। इनको आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आपको सेटिंग्स टैब में लेके गई। लेकिन आपको जब आज क्लास बनाएंगे अपने लिए और उसका कोड शेयर करेंगे मैडम के साथ, तो आपको इन सेटिंग्स में कोई भी फेरबदल नहीं करना है। ये सबसे पहला पॉइंट आपके लिए था। ऑल राइट, यस। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 टैब्स हैं। पहला है स्ट्रीम टैब, फिर है क्लास वर्क टैब, फिर है पीपल टैब, फिर है ग्रेड्स टैब। अब स्ट्रीम टैब में सारे नोटिफिकेशन, सारे अनाउंसमेंट, सारे सर्कुलर्स आप बच्चों को दे सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट टाइप कर रही हूँ, वेलकम, ओके, देखिए, वेलकम टू MEF क्लासरूम। आपको जो भी पोस्ट करना है, आप यहाँ पे टाइप करके पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉल पे, आपकी स्ट्रीम पे एज अ अनाउंसमेंट, एज अ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने 2 बजे कुछ तो भी पोस्ट किया है। और स्टूडेंट के पास भी ये सेम नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके टीचर ने कुछ तो भी पोस्ट किया है, सो प्लीज देखिए। तो ये सबसे पहला टैब जो है, ये स्ट्रीम के बारे में बताता है, दैट इज अनाउंसमेंट्स के बारे में बताता है, नोटिफिकेशंस के बारे में बताता है। ऑल राइट, तो जब कभी भी एक टीचर को कोई भी नोटिस देना है, कोई भी अनाउंसमेंट देना है, लाइक टुडे देयर वोंट बी एनी क्लास, तो आपको ये नोटिस देना है तो आप तुरंत अपने गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दीजिए, ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को चला जाएगा और फिर वो ये मैसेज पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं अपकमिंग, ये सेक्शन आपने कोई भी अगर ड्यू डेट पे चीज असाइन की है और उसकी डेट अभी होने की है, तो ये सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स का एक आपको टाइमलाइन यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यू कैन टाइप एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन।
सो फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ टू चेंज द थीम। अब स्क्रीन पे आने के बाद आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप अपनी ये थीम को चेंज करेंगे। ये अभी आपको ब्लू कलर की थीम दिख रही है, आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है या आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। आप सिंपल कस्टमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो कस्टमाइज बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी कंप्यूटर से कोई फोटो उठाना चाहें तो अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको गूगल क्लासरूम के कोई फोटोज थीम्स के फॉर्म में चाहिए तो आप वहां से कोई भी एक थीम सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए कोई भी थीम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा। सपोज मुझे ये सबसे पहली पीच कलर की जो थीम है कप वाली, ये सिलेक्ट करनी है। या आप सब्जेक्ट बेसिस पे भी करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कोई टीचर अगर इंग्लिश पढ़ाता है, उसने इंग्लिश की थीम लेनी है तो वो इंग्लिश की थीम को सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आके आपको एक थीम सिलेक्ट करनी है और ये जो ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट क्लास थीम, इसको आपको सिंपल क्लिक करना है। आपको कोई कलर अगर चेंज करना है तो आप चेंज करके कलर यहीं का यहीं पे चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया तो ये सारा टेक्स्ट ग्रीन में आ रहा है। मैं ऑरेंज सिलेक्ट करूंगी तो सारा टेक्स्ट ऑरेंज में आएगा। मैं पर्पल सिलेक्ट करूंगी तो सारा टेक्स्ट पर्पल में आएगा। तो सपोज मैंने ये पर्पल सिलेक्ट किया एंड फाइनली सेव बटन पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि मेरी थीम कैसे डिसाइड होगी। जो भी टेक्स्ट रहेगा वो पर्पल कलर से ही दिखेगा और जहां कहीं पे भी मैं टैब दबाऊंगी वहां पे भी मुझे इसी प्रकार की थीम देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने जो ये शेयर किया, दैट इज ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन चेंज योर थीम्स, how you can change your background, how you can change the color of the text. So this is the first point. Shall we move ahead? Yes? Yes? Hello everyone? पार्टिसिपेंट्स कहीं भी नहीं समझ रहा होगा तो पूछिए आप। अगर आपको नहीं समझ रहा है या कुछ भी पूछना है, you are free to ask anything in between also, no issues. तुम्ही मराठीत पण विचारू शकता। जर फास्ट होत असेल तर आपण मॅडमला स्लो करायला नहीं सांगू। जर स्टेप्स लिहून घेतले असतील नहीं व्यवस्थित, हा बोला। समजलं मॅडम, आतापर्यंत समजून राहिले, समजलं स्टेप्स ना? लिहून मला घेतलेले आहेत. जर नाही समजलं, जे लोक हो, इतकं टेक्निकली जर नसेल साऊंड, तर तुम्ही विचारा, कारण की हे तुम्हाला परफॉर्म करायचं आहे। मैडम Okay. कस्टमाइजचा ऑप्शन कुठून घेतला, सिलेक्ट केला? जी, कस्टमाइज का ऑप्शन आप जैसे ही क्लासरूम में आ जाते हैं ये कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑल राइट, फाइन। तो कस्टमाइज के ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट फोटो पे अगर क्लिक करेंगे और इसमें से जो भी फोटो आपको चाहिए उस फोटो पर क्लिक करना है, उस फोटो पर क्लिक करना है एंड फाइनली जो सबसे टॉप राइट साइड में, सॉरी बॉटम राइट साइड में सिलेक्ट क्लास थीम करके ये जो ऑप्शन लिखा है, इसको आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे और जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो थीम आपके लिए अप्लाई नहीं होगी। ऑल राइट, तो ये थीम के लिए था कि आपको अगर थीम चेंज करनी है तो आपको कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है, आपको अपने पसंद का कलर चूज करना है या फोटो चूज करनी है। उसको करने के बाद आपको सेव बटन को क्लिक करना है। सेव बटन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपकी थीम चेंज होगी। बैकग्राउंड कलर ये रहेगा ब्लैक एंड ये जो टेक्स्ट का कलर है वो ये रहेगा। ऑल राइट, अब आपका सबसे पहला असाइनमेंट नंबर 1 है कि हम अपने क्लास कोड को स्टूडेंट्स के साथ कैसे शेयर करें। सपोज आज की क्लास में मैं एज्यूम करती हूँ आप 25 to 30 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी क्लास में। क्लासरूम बना रही हूँ MEF की, ये आप सभी 25 पार्टिसिपेंट्स मेरी क्लास को ज्वाइन करें। तो लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमें ज्वाइन करना है? ऐसे केस में जो पर्सन क्लासरूम बना रहा है, वेदर वो टीचर हो
या फैसिलिटेटर हो या एक फैकल्टी, जो भी whosoever is making a class, या फिर एडमिन पर्सन ही क्यों ना हो जो कंप्यूटर का इंचार्ज है या लैब अटेंडेंट है, जो भी क्लास बना रहा है उसने क्या करना है, उसने सिंपल ये जो क्लास कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है G7MAW4E, इसके बाजू में जब आप ये रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लास कोड पूरा अच्छे से दिखाई देगा। या तो आप इस क्लास कोड को सिंपली सिलेक्ट कीजिए और राइट माउस क्लिक करके कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद जैसे मैं अभी आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर रही हूं ये कोड। क्या आप सभी को ये कोड मिला? ऑल राइट, यस, हेलो, Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. एक तरीका, ये मैंने मैडम, कोड हाँ। दे दिया स्टूडेंट को, ये मैंने स्टूडेंट को कोड दे दिया। ओके, अब स्टूडेंट क्या करेगा इस कोड का? स्टूडेंट अपनी जीमेल आईडी में जाएगा। क्या आप सभी को आर आइकन दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस, कैन वी सी? आ रहा है का? ये आर फॉर रिंकी। Yes, yes, yes. हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने आपसे सबसे पहले 2 बातें शेयर की थी। जब कभी भी मैं इस वाले टैब में जाऊंगी एस दिखेगा, मतलब मैं टीचर का रोल परफॉर्म कर रही हूँ। जब कभी भी मैं इधर पे आऊंगी आर वाले आइकन पे, मैं 2 ब्राउजर यूज कर रही हूँ, एक गूगल क्रोम और एक माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मैं जब कभी भी यहाँ पे आऊंगी एस आइकन पे तो आप समझ जाइएगा ये टीचर का प्लेटफॉर्म है। जब कभी भी मैं यहाँ पे आर प्लेटफॉर्म पे आऊंगी तब आप समझ जाइएगा कि ये स्टूडेंट के बारे में मैं परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। तो अब मैंने आप सभी के साथ एक कोड शेयर किया है। अब आपको करना क्या है? सिंपल, आपको अपने जीमेल अकाउंट में जाना है। जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आप अपने 9 डॉट्स गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप सभी अपने गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे टीचर ने क्लास का कोड भेजा है मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मुझे अब ज्वाइन करना है वो क्लास। तो पहला तरीका जो मैं बता रही हूँ वो कैसे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं लिंक के थ्रू कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि जो स्टूडेंट है उसने अपनी जीमेल आईडी ओपन करके रखनी है, फिर उसने ये 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद उसको भी गूगल क्लासरूम के ऐप पे जाना है। अब जब वो अपने ऐप में जाएगा या गर्ल जाएगी, ओके, उसने क्या करना है, ये जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है या तो इस पे क्लिक करके ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, या तो फिर ये डायरेक्टली जो बटन आप ब्लू कलर का सेंटर में देख रहे हैं इसको क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मुझसे क्लासरूम का कोड पूछ रहा है। ऑल राइट, और ये क्लासरूम का कोड मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ, इट्स अ 7 डिजिट्स और वी कैन से 7 लेटर्स कोड, हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके टीचर ने व्हाट्सएप में भेजा है तो आप व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट करके इस बॉक्स में डाल देंगे उस कोड को, एंड फाइनली आप ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओके, तो आज आपको क्या करना है, प्रीति मैडम ने जो आपको असाइनमेंट दिया है, अब देखिए, अब मेरे टीचर ने जो क्लासरूम बनाया था क्या ये वही क्लासरूम है? कैन यू सी दिस? यस और नो? मैम, वही क्लासरूम है। हेलो, यस यस, वही हेलो, क्लासरूम है। यस, Yes, madam. Yes, madam. यस, ये वही क्लास, यस ये आर पे है, यस। यस, ये वही क्लासरूम है। ऑल राइट, तो एक टीचर ने क्या करना चाहिए, हम टीचर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, ये टीचर का प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 2 3 4 टैब्स दिखते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, इसमें सिर्फ 3 ही टैब्स दिखाई देते हैं। देखिए ध्यान से, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, सिर्फ ये 3 ही टैब दिखाई देते हैं। तो अगर मैं टीचर हूं या मैंने क्लास क्रिएट की है तो मुझे क्या करना है, या तो मुझे ये कोड को कॉपी करना है सिंपल, या तो फिर अगर मैं ये कोड कॉपी नहीं कर रही हूं
तो मैं सीधे सीधे ये जो कॉपी इनवाइट लिंक है इसको कॉपी कर रही हूँ और आप सभी के साथ आपके चैट बॉक्स में ये लिंक को मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये लिंक देने से क्या होगा, जब कभी भी मैं इस लिंक को क्लिक करूंगी, ओके, जब कभी भी मैं इस लिंक को क्लिक करूंगी या आप जब कभी भी इस लिंक को क्लिक करेंगे, ओके, जैसे ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये लिंक को मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मैं इस क्लासरूम में आ जाऊंगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस यस, मैम, लिंक Yes, yes, madam. Yes. कहाँ से ली वो तो? मैं एक बार फिर से मैम, आप सभी को बता देती हूँ हाँ, कि लिंक कैसे कहाँ आए। से, लिंक कहाँ से? हाँ जी, दो तरीके हैं, या तो आप इस बॉक्स को क्लिक कीजिए और ये कॉपी इनवाइट लिंक को क्लिक कीजिए एक बार। जैसे ही आप इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको इसको जिस किसी के साथ भी शेयर करनी है आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। जैसे आपको व्हाट्सएप में शेयर करनी है तो इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में जाके पेस्ट कर दीजिए। आपको ईमेल करनी है तो आप ईमेल को क्लिक करके कर लीजिए। ओके, ये एक तरीका। अब दूसरा तरीका है, ये 3 डॉट्स आपको दिए हैं, अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड देन कॉपी इनवाइट लिंक को क्लिक करेंगे और ये लिंक मुझे जिसको भी सप्लाई करनी है वहां जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और ये लिंक सभी को मिल जाएगी। ऑल राइट, नहीं तो ये मुझे कोड जो है इसको कॉपी करूंगी और पेस्ट करके लोगों को दे दूंगी या स्टूडेंट्स को दे दूंगी और उनको बोलूंगी कि बेटा आप ना गूगल क्लासरूम अपने जीमेल आईडी में जाइए, जीमेल आईडी में जाने के बाद आप अपने एप्स में जाइए, एप्स में जाने के बाद आप गूगल क्लासरूम सिलेक्ट कीजिए और वहां जाके क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप कभी कोड देते हैं तो आपको स्टेप्स भी बच्चों को बतानी पड़ेगी। तो टिप नंबर 1 आज के सेशन की ये है कि हमेशा ट्राई कीजिए कि आप ये लिंक, ये जो लिंक है आप इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, मतलब इसको क्लिक कर लेंगे एक बार और प्रीति मैम को फॉरवर्ड करते टाइम आप उसको पेस्ट कर देंगे तो मैडम के पास आपके क्लासरूम की लिंक चली जाएगी और वो जैसे ही उस क्लास में क्लिक करेंगी वो क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगी। Getting my point? Yes or no? Yes. Yes, 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 ma'am. Yes. So this is the first way. If you wish to go with 3 dots, you can click on 3 dots. You can click on copy class code. तो फिर कोड कॉपी हो जाएगा। आपको इनवाइट लिंक क्लिक करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बट सरल ऑप्शन क्या है, इस बॉक्स को क्लिक कीजिए, कॉपी इनवाइट लिंक को क्लिक कीजिए और ये लिंक को पेस्ट कर दीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन माई क्लास। And right now I can see one sir, one faculty, or we can say one teacher, respected teachers, Aniket sir, he has joined my class. So can you see now, Aniket sir has joined, Meshram sir has joined, yes or no? Yes. So now they are directly joining my class. It means इनको क्लासरूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ ज्वाइन करने की जरूरत है। अब जब कभी भी ये अपनी क्लासरूम में जाएंगे, जो जो मैं पोस्ट करूंगी, जो भी मैं मटेरियल एंटर करूंगी या जो भी मैं असाइनमेंट्स दूंगी, वो सारा का सारा परफॉर्मेंस ये अपने क्लासरूम पे देख सकते हैं विथ नोटिफिकेशन, उनके जीमेल में भी आएगा। गॉट माई पॉइंट? यस, शैल वी मूव अहेड? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो अगर आपको कभी भी अनाउंसमेंट देने हैं आप सिंपल इसको क्लिक कीजिए एंड अनाउंसमेंट दीजिए। ठीक है, फाइन, ऑल राइट, एंड फाइनली उसको पोस्ट Right, कर ma'am, right. दीजिए। ऑल राइट, Right, नाउ right. वी शैल मूव टू द न्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द न्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेकेंड वाला जो टैब मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ, जिसके ऊपर आपका सेकेंड असाइनमेंट्स डिपेंड करता है, दैट इज how we can invite our teachers and how we can invite our students.
आपने एक तरीका तो देख लिया, या तो मैं टीचर या सॉरी या तो मैं स्टूडेंट को एक गूगल क्लासरूम का 7 डिजिट्स का कोड भेजूंगी, वो खुद से ज्वाइन कर लेगा, या तो मैं उसको इनवाइट लिंक डायरेक्टली भेज दूंगी, वो जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेगा और जीमेल का आईडी और पासवर्ड डालेगा, वो मेरी क्लासरूम में आ जाएगा। ये दो तरीके तो आपने देख लिए, बट व्हाट अबाउट फॉर दैट टीचर? उस टीचर के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जो सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऑल राइट, ए टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है, बी नाम का टीचर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, बट जो सब्जेक्ट है दोनों का वो कॉमन इन नेचर है, दैट इज वन एंड द सेम। लेट अस से बिजनेस लॉ. If business law is to be taught by me and by Sheetal Lakde madam in our college, then we don't create two separate class for A section or for B section. We will create only one classroom for both of the section. And हम इस तरीके से create करेंगे उस क्लास को, इस तरीके से एक दूसरे को इन्विटेशंस देंगे कि जब कभी भी शीतल मैम को कुछ भी अपडेट करना है वो सेम क्लासरूम में सेम आईडी के साथ अपडेट कर सकती है। जब कभी भी मुझे अपडेट कुछ करना है, मैं सेम क्लासरूम में सेम क्लास आईडी से जाके कुछ भी अपडेट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम बच जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है? सपोज ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मेरे साथ कोई और टीचर शेयर कर रहा है, तो मैं पीपल में जाऊंगी। पीपल में जाने के बाद मैं यहाँ पे इनवाइट टीचर का ये जो आइकन है इस पे सिंपली क्लिक करूंगी। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक दूसरा आईडी लिख रही हूँ, दैट इज रिंकी मूलचंदानी @gmail.com। ठीक है, ये मेरा दूसरा आईडी है। टोटल मेरे पास 3 जीमेल आईडी है, एक रिंकी DIMSR, एक रिंकी मूलचंदानी, एक ट्रेनिंग एट यूजीसी। ट्रेनिंग एट यूजीसी पे तो हम गूगल क्लासरूम बना रहे हैं, रिंकी DIMSR पे हम स्टूडेंट से लॉग इन हुए हैं, और अब ये जो रिंकी मूलचंदानी का आईडी है इसमें मैं एज अ टीचर उनको इनवाइट कर रही हूँ। तो सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये आईडी को और फाइनली इनवाइट करना है। ओके, अगर आप में से कोई और को टीचर बनना है यहाँ पे इस प्रेजेंट क्लासरूम के लिए, तो मैं जैसे प्रीति मैम का आईडी डाल रही हूँ। प्रीति मैम, कैन आई हैव योर आईडी प्लीज? हेलो, Yes. Yes, ma'am. Can I have your ID, please? I'll be inviting you as a teacher. Preeti Dharmik 5 @gmail. 5. Gmail. All right. Now this is the Gmail ID of Preeti ma'am. I will select it and simply I will invite her. अब ये मेरा invitation उनको चला गया है। अब क्या करेंगी प्रीति मैम मेरे इस इनविटेशन का? सिंपल, क्या करेंगे प्रीति मैम? सिंपल, प्रीति मैम अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगी। ऑल राइट, जैसे कि मैं अभी अपने जीमेल अकाउंट में जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी, मैं अभी अपने जीमेल अकाउंट में जा रही हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक टीचर कैसे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड कैसे यूज कर सकता है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी 1 minute. Not connected, trying to reconnect now. Okay. मैं अपने दूसरे जीमेल अकाउंट में जा रही हूँ रिंकी मूलचंदानी में। ये जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टेड, आई थिंक इट इज नॉट कनेक्टेड। ओके प्रीति मैम, कैन यू प्लीज कनेक्ट टू मी? हेलो, क्या हुआ मैम?
हेलो हाँ मैम, आवाज आ रही है? प्रीति मैम, कैन यू हेलो। प्लीज ज्वाइन माय क्लास? यस यस, वेट। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैडम, लेकिन ब्रेक हो रही है। या सिंपल सी स्टेप है। हाँ हाँ हाँ, वही मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यहाँ से। Okay. मैंने मेल ओपन देखिए किया सिंपल सा मेरा, स्टेप है, और आपको उसमें अपने जीमेल। अभी मेरा हो गया मैम, कनेक्ट हो गया मेरा इंटरनेट। ओके। ओके, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मैम? यस मैम। हाँ मैम, यस, हाँ मैम, दिखाई दे रहा। ये देखिए, ये रिंकी मूलचंदानी का आईडी है। ओके, ये मेरे टीचर का आईडी है। ऑल राइट, जिसको मैंने अभी इनविटेशन भेजा है, मैं उनके आईडी में जा रही हूँ। उनको कोई ना कोई गूगल का नोटिफिकेशन आया होगा क्लासरूम का। ये देखिए, ये आप सभी एक मेल देख पा रहे हैं, एसटीसी ट्रेनिंग क्लास इनविटेशन टू को टीच MEF। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? यस, Yes, yes, कैन ma'am. वी Yes. सी दिस मेल? Yes, madam. यस। Yes, ma'am. तो सिंपल, जिस टीचर को मैंने इनवाइट किया है, उस टीचर ने अपने मेल में जाना है। मेल में जाने के बाद वो टीचर क्या करेगा? सिंपल एज अ टीचर रोल प्ले करेगा एंड सिंपल उस क्लास को ज्वाइन करेगा। यस। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब कभी भी दूसरे टीचर को कुछ भी मटेरियल अपलोड करना है तो उनके पास भी अधिकार है, और जो पहला पर्सन यूजीसी ट्रेनिंग आईडी से जो मैं क्लास बना रही हूँ, उस पर्सन को भी अधिकार है। इज इट ओके? सो नाउ शैल वी मूव अहेड? यस, यस। यस यस मैम। Okay, so now we are going back. Okay, अब आप देखिए, ये पीपल्स टैब है, ये स्ट्रीम है, ये क्लास वर्क है, ये ग्रेड है। जैसा हम जहाँ पे थे हम वहीं पे ही हैं। जैसे ही आपके सामने टीचर एक्सेप्ट कर लेता है आईडी को, ओके, तो आपको पीपल्स टैब में से ये भी, आपको ये फेड दिख रहा है अभी, ये थोड़ी देर के बाद ऐसा एक्टिव मोड में आ जाएगा। अभी शायद इंटरनेट इश्यू चल रहा है, इट्स ओके, बट आपको ये भी क्या हो जाएगा, ये टीचर भी आपका एक्टिव मोड में आ जाएगा। जैसे ये बाकी के सारे कैंडिडेट्स अभी एक्टिव मोड में आपको दिख रहे हैं, वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में गलत तरीके से एंटर हुआ है, जो आपका स्टूडेंट नहीं है, आप सिंपल उसके चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, यहाँ से 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए। ओके, सपोज ये स्टूडेंट मेरी क्लास में unwantedly or unknowingly he has entered into my classroom. I'll simply click the number of students who all have entered, and I will simply click on either actions, and finally I'll remove them. Okay, this is the way we can remove our students who are invited wrongly in our classroom. All right, तो पीपल में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ या तो टीचर्स को इनविटेशन देना है या स्टूडेंट को इनविटेशन देना है। आप सभी के कॉलेज के ऑफिस के डिपार्टमेंट के पास सारे स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी रहते हैं। अगर आप सभी उन्हीं बच्चों को इनविटेशन देना चाहते हैं जो आपके ऑन रोल बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे केस में आपके लिए एक ही सजेशन है, ना ही आप क्लासरूम कोड दीजिए, ओके, ना ही आप बच्चों को स्टेप्स बताइए कि कैसे ज्वाइन करना है। सिंपल आप यहाँ पे आके अपने ऑफिस के एडमिन से सारी ईमेल आईडीज ले लीजिए और यहाँ पे आके आप वो सारे ईमेल आईडी को पेस्ट कर दीजिए। ओके, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपने इकट्ठे 256 बच्चों को इनविटेशन दे दिया है एक ही साथ, तो बच्चों को बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना है, मुझे तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या मेरे टीचर ने तो बताया नहीं, अब मैं ज्वाइन कैसे करूं। जबकि आजकल के बच्चे काफी टेक्नो सेवी हैं, टेक सेवी हैं, उन्हें सब कुछ आता है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कॉलेज की तरफ से एक ऑफिशियल मेल जाना चाहिए बच्चों को, फिर वो मेल में जब जाएंगे, वहां से जब वो लिंक को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे। अगर आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों को बताने का, तो उसमें आपका सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप पीपल टैब में जाएंगे
और स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उन सभी बच्चों के ईमेल आईडीज को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और आप ये एक सिंगल क्लिक करेंगे इनवाइट, आपके 100, 200, 256 इज द लास्ट लिमिट, ओके, फ्री अकाउंट्स में, तो 256 कैंडिडेट्स को आप डायरेक्टली इनविटेशन भेज सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? शैल वी मूव अहेड विथ योर परमिशन? यस, yes, you can write in a chat box also if we can move ahead, yes or no. Yes, so shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes. Yes, so you Yes, have ma'am. seen two things. Number one is stream, number two is people. Now the actual class making is started. अब हम एक्चुअली क्लास में जो करने वाले हैं वो अब हमारा ये फेस आया, ये टाइम आया जब हम एक्चुअली मटेरियल अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, यूट्यूब की लिंक्स अपलोड करेंगे, अपने असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे, रूब्रिक्स को इन्वॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहली स्टेप आपने देखी कि आपने क्लास क्रिएट किया, फिर सेकेंड स्टेप आपने देखी आपने थीम चेंज की, फिर थर्ड स्टेप आपने देखी आपने क्लासरूम का कोड चेंज किया विद द हेल्प ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट करके, विद द हेल्प ऑफ कॉपी इनविटेशन लिंक को करके। फोर्थ स्टेप आपने देखी कि हाउ टू इनवाइट टीचर्स if who is teaching the same subject, how to invite students in one go only by using the people's tab. So when you feel yes, I need to invite all number of students in one go without making much chaos or without making much hassle in my class, I can simply invite them with the help of this icon. So this is all about the people's tab. Now we are going to start our class work, that is the class work. जब तक आप क्लास में कोई असाइनमेंट नहीं डालते हैं, उसके मार्क्स नहीं अपलोड करते हैं, तब तक आपका ग्रेड्स का सेक्शन ऑफ ही रहेगा। तो ये ऑन कब होगा? जब आप मार्क्स इसमें एंटर करेंगे और मार्क्स कब एंटर करेंगे? जब आप कोई बच्चों को काम देंगे करने के लिए और वो काम आपको रिटर्न करके भेज रहे हैं। So now I go with my first point, that is creating the material along with the topics. Okay? अब आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, कोई लॉ के टीचर हैं, उनको मॉड्यूल वाइज 4 यूनिट्स हैं, तो वो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 के बारे में बता सकते हैं। ऑल राइट, अगर कोई कॉमर्स मैनेजमेंट का टीचर्स हैं, उनके यूनिट्स वाइज हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बता सकते हैं। या तो फिर एक सिंपल सा तरीका जो हम डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पे टॉपिक्स बना लेते हैं, वीडियोस एक टॉपिक हो गया, स्टडी मटेरियल दूसरा टॉपिक हो गया, असाइनमेंट्स तीसरा टॉपिक हो गया, रिजल्ट्स चौथा टॉपिक हो गया, और हम उन टॉपिक्स के अंदर अपना मटेरियल सारा अपलोड करते जाते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को वीडियो सिर्फ देखने हैं तो वो वीडियो सेक्शन में जाए और यूनिट वाइज वीडियोस देखे। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ स्टडी मटेरियल रेफर करने हैं तो वो सिर्फ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाएगा और यूनिट वाइज सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर पाएगा। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है क्लास वर्क पे क्लिक करना, दूसरी स्टेप है क्रिएट बटन पे क्लिक करना। क्रिएट बटन पे क्लिक करना, अगर आपको प्रीति मैम ने असाइनमेंट दिया है कि आप कोड कैसे देंगे, तो क्लास क्रिएट करने के बाद आप कोड उनको डायरेक्टली भेज भी सकते हैं या उनको लिंक भी भेज सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 आपका हो जाएगा। असाइनमेंट नंबर 2, आप किसी टीचर को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपकी स्टेप नंबर 1 रहेगी, पीपल टैब में जाना है, इनवाइट आइकन पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी लिखना है एंड फाइनली उनको सेंड कर देना है। ओके, अब आपको अगर तीसरा असाइनमेंट्स आज के क्वेश्चन इसके सेशन के बेस पे अगर मिलेगा तो वो यही रहेगा कि आप टॉपिक्स कैसे बनाएंगे और उन टॉपिक्स के अंदर मटेरियल कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले वालियों पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट क्लिक किया। सबसे पहली स्टेप है आपकी क्लास में टॉपिक्स बनाने की
क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक क्लासरूम बनाएंगे तो आपके बच्चे आसानी से हर एक चीज एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट पे पोस्ट डेली डालते जाएंगे और उसका कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, तो इट विल बी अ वेग क्लासरूम फॉर अ स्टूडेंट। ही विल बी जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर विदाउट सर्विंग एनी पर्पस। तो हमें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक क्लासरूम बनानी है, तो हम टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले टीचर सिलेबस देता है एंड पेपर पैटर्न देता है। ऑल राइट, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, तो ये मैंने पहला टॉपिक बना लिया। अब दूसरा टॉपिक बनाना है, तो क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, टॉपिक पे क्लिक करना है। अब दूसरा टॉपिक है मेरा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल पीडीएफ में भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, पावर पॉइंट में भी हो सकता है, किसी आर्टिकल की लिंक भी हो सकती है गूगल से, ओके, एनी फॉर्म। मैंने मटेरियल दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने सबसे पहले बनाया वो नीचे आ गया टॉपिक, जो मैंने सबसे बाद में बनाया वो टॉपिक ऊपर आ गया। तो ये गूगल क्लासरूम में आपका ऑर्डर जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप जो चीज अभी लेटेस्ट क्रिएट करेंगे वो सबसे टॉप पे दिखेगी, और जो पोस्ट या जो क्रिएशन आपकी ओल्डेस्ट रहेगी वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, अगेन टॉपिक पे क्लिक करना है। अब आपने स्टडी मटेरियल क्लिक कर लिया, आपको वीडियोस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे वीडियोस का टॉपिक बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बना रही हूँ, हम सभी टीचर्स हैं तो हम बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं कि ड्यू डेट पे करके आओ। या तो वो क्विज के फॉर्म में होगा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, या तो वो सब्जेक्टिव असाइनमेंट रहेगा। जितने भी असाइनमेंट्स रहेंगे वो सब इस फॉर्म में रहेंगे। सपोज आपके इंस्टीट्यूट में फॉर्मेलिटी है, लाइक हमारे यहाँ है कि हम 2 असाइनमेंट्स देते हैं और 2 यूनिट टेस्ट देते हैं, तो हम यूनिट टेस्ट का टैब अलग बनाते हैं, असाइनमेंट्स का अलग बनाते हैं। अब स्टूडेंट ने सब कुछ आपको सबमिट कर दिया, एट द एंड ऑफ द क्लास और एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट सबमिशन ही आल्सो वांट टू सी द रिजल्ट्स, तो हम एक अलग से टैब बनाते हैं, दैट इज द रिजल्ट्स टैब। सो we have made how many topics, 1 2 3 4 5 6। अब आप चाहते हैं कि आप इसको सीरियली ऑर्डर करें। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए, इसको मूव अप कीजिए, फिर से 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए, फिर मूव अप कीजिए, फिर से 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए, फिर मूव अप कीजिए। ऐसी प्रोसेस करेंगे तो आपका समय जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड जो है दैट इज मेथड नंबर 2, वो डायरेक्टली ये बोलता है कि आप इसको सिलेक्ट करके रखे हो, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ। आपको सिलेक्ट किया हुआ है ये ऑलरेडी, ओके, सॉरी क्लास वर्क में ये आपने सिलेक्ट किया है, आप इसको बस ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जाओ जहां आपको ये सिलेबस के बाद स्टडी मटेरियल, इसके बाद असाइनमेंट। सिर्फ आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ कर्सर रखना है। ये आपने कर्सर रखा, ये हैंडशेप कर्सर हो गया। अब आपको इसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट माउस क्लिक, और इसको जहां भी आपको ड्रैग करके लेके आना है आप इसको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल के बाद मेरे वीडियोस हो, उसके बाद मेरे असाइनमेंट्स रहेंगे, मेरे यूनिट टेस्ट रहेंगे, मेरे रिजल्ट्स रहेंगे। अब ये पूरे सिंक में मैंने टॉपिक्स बना दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक बनाना है, आप कोई और टॉपिक भी बना सकते हैं। ओके, लाइक आप बच्चों से हर एक क्लास के बाद कोई क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये सॉल्व करो, तो आप एक क्वेश्चंस के नाम का भी एक टॉपिक बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे वीडियोस के बाद रख रही हूँ। ऑल राइट, तो इज द टॉपिक्स क्लियर नाउ? यस और नो? Yes. Now I will go to Yes, students ma'am. platform. Now I am on my students platform, that is our platform. Now I will see what my teacher has done for me. Okay. I have to see what my teacher has done for me. So what I can see is nothing has been posted. Is anything posted here? Is anything posted? Yes. Hello.
Is anything posted? Can you see any announcement my teacher has published at this point of time? No. She has not posted anything, so I am unable to see anything. Okay. So what we have to do is, हमने ये जो टॉपिक्स बनाए हैं, ये टॉपिक्स बच्चे को तभी दिखाई देंगे जब एक बार आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे। इसलिए हर टॉपिक के नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स ये टॉपिक तब देख पाएंगे जब इसके अंदर आप कोई फाइल, कोई मटेरियल, ओके, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो हम शुरू करें अभी सिलेबस अपलोड करना, यस और नो? यस यस। तो Yes, अब मैडम। पहली स्टेप हमने की थी टॉपिक्स को क्रिएट करने की। अब दूसरी स्टेप हम क्रिएट करेंगे मटेरियल, मतलब टॉपिक्स बन गए हैं, अब इन टॉपिक्स के अंदर, इन हेड्स के अंदर हम मटेरियल अपलोड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि एक सिस्टमैटिकली क्लासरूम खुद ब खुद बनता जा रहा है जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप थी टॉपिक्स को क्रिएट करना। अब दूसरी स्टेप है मटेरियल्स पे क्लिक करना। अब आप ये मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल बनाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब ये जो भी आप मटेरियल का टाइटल दे रहे हैं, लेट अस से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं पहला यूनिट इकोनॉमिक्स में हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर का ही पढ़ाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा कि ये यूनिट 4 का है मटेरियल और इस यूनिट 4 का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। आपको स्टूडेंट को कोई डिस्क्रिप्शन या कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो आप यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दें। अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, टाइटल देना। ओके, मतलब यूनिट 4 का मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करने जा रही हूँ, तो यूनिट 4 के नाम से आएंगी, दैट इज टाइटल हो जाएगा वो मेरा। अब राइट हैंड साइड में आप देखिए, आपको ये मटेरियल कौन कौन सी क्लासरूम में आपको अपलोड करना है। सपोज लेट अस से मेरा पहला सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, ऐसे केस में मुझे दोनों को एक साथ अगर अपलोड करना है ताकि मैं एक ही बार अपना काम करूं, तो ऐसे केस में आप अपने रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा जहां पे ये कॉमन मटेरियल काम में आएगा। ओके फाइन, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं अपना एक ही क्लास पे काम कर रही हूँ, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे, तो मेरा यही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। अब ये जो आप यहाँ पे टाइटल लिखे हैं, ये आप कौन सी कैटेगरी के लिए लिखे हैं? असाइनमेंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, रिजल्ट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, ओके, या फिर सिलेबस के लिए? तो अगर हमको सिलेबस देना है तो हम यहाँ पे सिलेबस भी हेडिंग दे सकते हैं और यहाँ से सिलेबस चूज कर सकते हैं, ठीक है? अब ये टाइटल मैच हो रहा है मेरी कैटेगरी। एक बार आपने सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे अपलोड, सिलेबस की फाइल ड्राइव में है, क्या आपने सिलेबस की वीडियो बनाया है और उसे यूट्यूब पे अपलोड किया है? क्या आप गूगल के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर भेजना चाहते हैं? क्या आपके पर्सनल कंप्यूटर, लैप या आपके फोन अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली अपलोड करेंगे तो मिल जाएगा। यस, अब हम सबसे पहला तरीका जो यूज करने वाले हैं दैट इज अपलोड ऑप्शन। अब जब कभी भी हम क्लासरूम बना रहे हैं, ये मैं टिप नंबर 2 आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इस सेशन के लिए, कि आप अपना एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर बना लीजिए अपने सब्जेक्ट के नाम का। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है गूगल क्लासरूम के नाम का। इस फोल्डर में मैंने असेसमेंट, असाइनमेंट भी रख दिया है, इसी फोल्डर में मैंने 4 वीडियोस भी रख दिए हैं, इसी फोल्डर में मैंने 4 पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी रख दिए हैं, इसी फोल्डर में मैंने सिलेबस भी रख दिया है। ऑल राइट,
तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल अपलोड पे क्लिक करूंगी। यस, मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना आपके हिसाब से? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, नो, यस, सो व्हाट आई हैव टू डू इज सिंपल, यस यस यस, ठीक है। यस। तो मैंने क्या किया, सिंपल देखिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सिंपल क्रिएट पे गए, मटेरियल पे गए, यहाँ पे हमने सिलेबस हेडिंग दिया, राइट हैंड साइड से हमने टॉपिक मैच किया, उसके बाद हम अपलोड पे क्लिक कर रहे हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फाइल आपके कंप्यूटर की है। तो आप जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, जहां भी आपका डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप, जहां पे भी आपका फोल्डर सेव है, आप उस डेस्टिनेशन पे जाइएगा। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आप अपने फोल्डर से वो पर्टिकुलर सिलेबस की फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। अब ये फाइल सिलेक्टेड है, इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब ये फाइल की प्रोसेस आपको होने देनी है, जब तक ये नहीं होता है तब तक आप इसको कुछ भी मत कीजिए। जैसे ही एक बार अपलोड हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेबस MEF PDF आ गया है। कैन वी सी? हेलो एवरीवन, एक्सक्यूज मी, यस, कैन वी सी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, यस। Yes, madam. Yes, madam. now what you can do is, अगर आपको डायरेक्टली इसको बच्चों को दिखाना है तो आप इसको क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल आपने पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम को अपडेट किया गया है। ओके, मैंने इसको सिर्फ आके रिफ्रेश किया और कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ F5 बटन को प्रेस किया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा सबसे पहले स्ट्रीम पे, और टाइम के साथ दिखाई देगा। एंड आप सभी को भी आपके ईमेल में नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि 2:44 पे कुछ तो भी पोस्ट हुआ है। कैन वी सी दिस? STC training posted a new material syllabus. Yes or no? Yes? Yes, yes, madam. Yes, ma'am. Yes. तो आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ, मेल में आया है ना आपको? मेल नहीं आया, मेल हाँ जी, नहीं आया, वो पोस्ट दिख रहा है लेकिन मेल नहीं आया, पोस्ट किया है उसका। हो सकता है कभी कभी आपको किसी ईमेल पे मटेरियल के नहीं आते आया हैं, है। किसी मटेरियल के आ जाते हैं पोस्ट, किसी के नहीं भी आते हैं नोटिफिकेशंस, या थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है। इट कैन हैपन इन दिस वे। ठीक है। ओके, सो न्यू मटेरियल सिलेबस, तो ठीक है, मैम। स्टूडेंट क्या करेगा, ये सिलेबस वाले के आइकन पे क्लिक करेगा एंड फाइनली ये सिलेबस की कॉपी देखेगा एंड उसको पता चल जाएगा कि मेरे टीचर ने मेरे लिए आज सिलेबस अपलोड किया है, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू होने वाली है। तो ये 4 यूनिट का सिलेबस यूनिट वाइज along with the header of my college, it is here ready. Okay, ये सब्जेक्ट का नाम, ये BBA सेमेस्टर 2, ये यूनिट वाइज उसको सिलेबस सारा मिल जाएगा इन वन बुक। तो ये सबसे पहली स्टेप हमने क्या की, हमने सिलेबस ऐड किया। अब देखिए, आप अगर टॉपिक्स बनाए हुए नहीं रहते थे तो ये सिलेबस ऊपर दिखता था, देन स्टडी मटेरियल इसके नीचे दिखता था, देन वीडियोस इसके नीचे दिखता था, और फिर जैसे जैसे आप हर दिन या हर हफ्ते जब भी मटेरियल को ऐड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो एक सिंक में नहीं रहता था। वो ऐसे कैसे रहता था, वो सिर्फ लाइन में रैंडमली आ रहा है, कभी वीडियो देखने को मिल रहा है, कभी कुछ। लेकिन जब आप टॉपिक्स बना देते हैं और उसको एक टॉपिक के अंदर डाल देंगे पर्टिकुलर टाइटल को, तो वो क्या होगा,
ये टीचर के प्लेटफॉर्म पे ऐसा सिंक में दिखेगा। अभी आपने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का ही इसमें यूज किया है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। ऑल राइट, फाइन, यस, yes or no? Yes. So Yes, this is yes, the ma'am. first This is thing Yes, ma'am. we have done in case of syllabus posting. Now second thing is ये syllabus हो गया, let us say paper pattern भी आपको upload करना है, आप same steps follow कीजिए, it's one and the same thing. जैसे आपने syllabus upload किया वैसे आप paper pattern भी upload कर सकते हैं. Okay. Now study material मुझे ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल. अब मैं क्रिएट पे जाऊंगी, कोई भी मटेरियल आपको ऐड करना है, आप मटेरियल पे क्लिक कीजिए. अब यहाँ पे स्टडी मटेरियल मुझे यूनिट 4 का देना है, क्योंकि मैं सबसे पहले लेट अस से, वैसे तो मैं सबसे पहले यूनिट 4 शुरू नहीं करती हूँ, लेकिन आज के सैंपल को शो करने के लिए मटेरियल इसमें ऐड किया हुआ. तो यूनिट 4 का मैं मटेरियल यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ. आप चाहे तो यूनिट वाइज जा सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. ओके. अब यूनिट 4 आपने मार्केट स्ट्रक्चर लिख दिया. अब ये या तो वीडियो भी हो सकता है या तो स्टडी मटेरियल भी हो सकता है. तो सेम टाइटल आप स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से स्टडी मटेरियल के लिए भी हो सकता है, या तो आप यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम पीडीएफ फाइल डालते हैं. अब पॉइंट नंबर 2, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपलोड पे जाइए. ओके, आप अपलोड पे जाइए, आप ब्राउज पे जाइए, आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप फाइल को ओपन कीजिए. ओके, ये तो आपने मटेरियल ऐड करना अभी अभी सीख लिया, या आपको पहले से ही ऑलरेडी आता है तो आपने सिलेबस वैसे ही डाला. बट मैं चाहती हूँ, ओके, मैं ये सेकेंड ऑप्शन यूज नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राइव में मैंने अपना मटेरियल ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है. अब मैं ड्राइव से अपलोड करना चाहती हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड नहीं करना चाहती, मैं मेरे गूगल ड्राइव से अपलोड करना चाहती हूँ. तो मैं ड्राइव आइकन पे क्लिक करूंगी. ओके, फिर मैं माई ड्राइव पे क्लिक करूंगी. ओके, यहाँ पे मैंने एक SM नाम का फोल्डर बना के रखा है, दैट इज स्टडी मटेरियल. यहाँ पे आप इसको चाहें तो ये लिस्ट को क्लिक कर सकते हैं. अगर आप ग्रिड में देखना चाहते हैं तो ऐसा दिखाई देगा. अगर आप लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारे नाम अच्छे से दिखाई देंगे. BBA का ये सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर है इसलिए 2 है, सब्जेक्ट का नाम MEF है, चौथा यूनिट है इसलिए 04 है, स्टडी मटेरियल फाइल नंबर 3 है तो ये थर्ड फाइल है. तो हमारे कॉलेज में हम नॉमेनक्लेचर्स के साथ काम करते हैं फाइल मेकिंग का. तो ये स्टडी मटेरियल जब हम पोस्ट करते हैं गूगल क्लासरूम में, तो हर एक फाइल का हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर रखा हुआ है, एक नाम रखा हुआ है. तो ये बिलोंग करता है कि ये BBA का है, सेकेंड सेम का है, MEF सब्जेक्ट का है, चौथे यूनिट का है, तीसरी फाइल है, मतलब थर्ड टॉपिक की फाइल है. फिर थर्ड टॉपिक मुझे यहाँ पे डालना है तो मैं एक सिंगल इंसर्ट भी कर सकती हूँ. अगर मुझे मल्टीपल इंसर्शन करना है तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके बाकियों को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. तो वापस से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, माई ड्राइव में जाना पड़ेगा. ऑल राइट, now I am here in my drive. Okay. आप चाहे तो रिसेंट भी कर सकते हैं, माई ड्राइव भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो माई ड्राइव में आपको जाना पड़ेगा. आई एम गोइंग अगेन बिकॉज नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है. माई ड्राइव में जाना पड़ेगा और माई ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल का फोल्डर दिखाई दे रहा है. ये स्टडी मटेरियल के फोल्डर को आपको डबल क्लिक करना है. फिर आपको ये जो लिस्ट का आइकन दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लिक करना है आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए. उसके बाद अब आपको जितनी भी फाइलें चाहिए, आप पहली फाइल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल
की प्रेस करके रखिए, फिर आप दूसरी फाइल को सिलेक्ट कीजिए, तीसरी को लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस के साथ, चौथी पे आके माउस के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब आपकी चारों फाइल्स एट वन गो पे सिलेक्ट हो गई हैं एंड फाइनली नाउ यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। अब आप देख रहे हैं कि एक साथ मैं ये मटेरियल पूरे एक हफ्ते में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये एक हफ्ते का मटेरियल मैंने आज ही पोस्ट कर दिया है क्योंकि कल से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ऑलराइट, तो ये मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट को आज ही मिल जाए और वो देख ले कि मेरी टीचर ने आज मुझे स्टडी मटेरियल अपलोड करके दिया है। फाइनली हम क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब आप देखिए, आप टीचर हैं, ये आपका यूनिट 4 का स्टडी मटेरियल का आइकन आ गया। कैन वी सी? यस और नो? Yes, madam. Yes, madam. तो हमने ये स्टडी मटेरियल को क्लिक किया। अब आप देखिए आपकी जितनी भी फाइल्स हैं ये सब आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फाइल 2 बार अपलोड हो चुकी है, मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। ये तो टीचर का प्लेटफॉर्म है, अगर मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि मेरी टीचर ने एक यूनिट 4 का मार्केट स्ट्रक्चर अपलोड किया है। मार्केट स्ट्रक्चर में मेरी टीचर ने एक फाइल को 2 बार दे दिया, तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करेगा, सिंपल इस फाइल को ओपन करेगा और स्टडी मटेरियल पढ़ लेगा, उसके लिए तो ये आसान चीज है। बट बीइंग अ टीचर हमें इन सारी मिस्टेक्स को रिमूव करना है। तो ये यूनिट 4 का मेरा मटेरियल है सीरियल ऑर्डर फॉर्म में। ओके, ये स्टूडेंट देख सकता है। अब टीचर क्या कर सकता है ऐसे केस में, ये देखिए मैं एस आइकन पे हूं, मैं टीचर के प्लेटफॉर्म में हूं। टीचर ने जिस पोस्ट को पोस्ट किया है अभी 2:51 पे, टीचर उस पोस्ट को कभी भी चेंज कर सकता है। तो उसने करना क्या है, सिंपल ये 3 डॉट को क्लिक करना है। ओके, टीचर को अगर अपनी पोस्ट को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए उसे करना क्या है, सिंपल उसको 3 डॉट्स को क्लिक करना है। 3 डॉट्स को क्लिक करना है। देन 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद उसे एडिट पे क्लिक करना है। उसे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर ये 2 बार पोस्ट हो चुका है तो इसको एक बार यहां से कट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि सारी फाइल्स एक एक बार ही पोस्ट हुई हैं एंड फाइनली अपने काम को, अपने वर्क को टीचर ने सेव बटन पे क्लिक करके सेव करना। ऑलराइट, अब आप देख रहे हैं कि ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये क्या मैसेज दिखा रहा है, एडिटेड, मीन्स इट हैज बीन चेंज। सेम मैसेज ये स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे भी दिखाएगा कि मेरे टीचर ने एक पोस्ट को एडिट किया है एट दिस टाइम। अर्लियर टाइम वाज दिस, नाउ दिस इज द टाइम। यस, अब आज मैंने 6 टॉपिक्स के मटेरियल को अपलोड कर दिया। नाउ नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टीच न्यू टॉपिक्स। तो एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द मटेरियल ना, यहाँ पे मटेरियल में जाके मैं क्या करूंगी, ये स्टडी मटेरियल के अंदर जो ये यूनिट 4 का सेक्शन है, मैं अगले हफ्ते वापस से इन 3 डॉट्स पे आऊंगी, वापस से एडिट पे क्लिक करूंगी। अब मैं वापस से यहाँ पे कोई फाइल ऐड करनी है मेरे कंप्यूटर से या ड्राइव से, जहां से भी आपको ऐड करनी है, आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। आपको जो भी फाइल यहाँ पे लगती है कि आपको यहाँ पे ऐड करनी है, अभी मैं 2 मिनट के लिए यही वाली फाइल ऐड कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे आके नेक्स्ट वीक के लिए न्यू मटेरियल को सेम हेडिंग में भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द गूगल क्लासरूम कि हम यहाँ पे पोस्ट आज किए हैं यूनिट 4 मटेरियल की, लेकिन अगर कल चल के मुझे इसमें कुछ और एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है तो आई कैन ऐड दिस पोस्ट एंड क्लिक ऑन सेव बटन। जबकि मुझे ये सिलेबस अभी रखना नहीं है तो मैं हटा देती हूँ एंड सिंपली सेव पे क्लिक कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल टीचर प्लेटफॉर्म पे। आप मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप व्यू मटेरियल पे क्लिक कीजिए,
being a teacher, you can also see your material in the form of PDF. So this is the PDF file which you can see. Okay, so this is the PDF file. Now we will move on to the third important point, that is how to add your videos. Okay, how to add your videos. हमने अभी PDF फाइल डाल दी. Okay, वीडियोस को ऐड करने से पहले आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा. हेलो ये मटेरियल तो यस मैम. रिंकी मैम, थोड़ा सा ना टाइम लैग हो रहा है, मतलब आपका वॉइस और स्क्रीन विजिबिलिटी में. अच्छा, आप लोगों को भी हो रहा है क्या फ्रेंड्स? हो मॅडम आवाज क्लिअर स्क्रीन उशिरा दिसत आहे, आवाज पहिले येतोय, तर थोड़ा सा स्लो जाइए, मतलब स्क्रीन विजिबल हो जाती है ये साइड में. ओके ओके, जी. sure sure, thank you so much. Yes, so shall I do this step again if screen has been visible later on? येस मॅम. Okay, fine, I'll go to classwork. Is the classwork screen shared? Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, madam. Visible है. Okay, I'll go to create. Is the create options available? येस मॅम. येस येस. Yes. Now I will go to Yes, ma'am. material. Is the material screen visible? Ma'am. येस मॅम. येस. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. Now, unit 4 market structure I am writing. Is it visible? Yes, ma'am. Yes. Now on the right hand side, I will choose videos. So is it okay? Okay. Okay. ma'am. Now I am having two options. Either I can use upload, or I can use YouTube, or even I can use the drive also. तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे. पहला अपलोड. अपलोड पे क्लिक किया. अपलोड का स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ मैम. यस. ब्राउज पे क्लिक किया. ब्राउज का स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है, एक डायलॉग बॉक्स. Yes. यस मैम. यस, वेरी गुड. नाउ ये वीडियो के आइकन्स है मेरे MP4 फाइल्स. कैन यू सी 4 फाइल्स? 2 3 4 5. हेलो एवरीवन. Yes, ma'am. Yes. Now I'll select one file and I'll click on open. Okay, this is the first method we are using. It is getting uploaded, so it will take time because it is a video. So is my screen visible? 3.2 MB. Ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. ये प्रोसेस हो रहा है, इसको होने देना पड़ेगा बिकॉज ये हमने कंप्यूटर से अपलोड की है. Yes, it is going on, sir. I need to take time of 1 or 2 minutes more. Okay. Now, can we see this file here on the timeline? BBA2 MEF4 2.mp4. Yes, yes. Yes, can we see? Yes. Yes. In fact, you can notify me on chat box also by saying yes or no. That will also do. Okay.
सो ये मैंने किया, ये हो गया आसानी से अभी पॉइंट नंबर 1. Shall I move ahead to another option? Yes. तो अभी हम YouTube पे जाते हैं, YouTube पे क्लिक करेंगे. सभी को YouTube का ये व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? Yes, madam. Yes. Yes. Now I will write here market structure in economics. And I will simply click on search button. आप सभी के सामने आ गए वीडियोस का टाइमलाइन, बहुत सारी वीडियोस आप सभी देख पा रहे हैं मेरे साथ. मैडम अभी आने का है. हाँ, नाउ इट इज ओपन. Okay. Now we will select any video. I have selected one video. कोई भी आप randomly choose कीजिए, not necessary कि यही करना है. ओके, मैंने ये सिलेक्ट किया. उसके बाद क्या आप स्क्रीन पे ऐड वीडियो बटन देख पा रहे हैं? Yes. यस यस. Yes, madam. ऐड वीडियो पे आपको क्लिक करना है. ये वीडियो ऐड हो गया, 2 वीडियोस ऐड हो गए. यस और नो? कैन वी सी Yes. 2 वीडियोस आर एडेड. एक मैंने Yes, yes. कंप्यूटर से Yes, ऐड ma'am. किया, Yes, ma'am. एक मैंने YouTube से ऐड किया. अब मैं एक और चीज बताती हूँ आपके सामने. आप अभी YouTube प्लेटफॉर्म पे गए, ओके, आपने यहाँ पे टाइप किया मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स. ओके, आपने ये टाइप किया. अब आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आपके सामने मेरी स्क्रीन ओपन है YouTube की? हेलो एवरीवन. Yes, madam. Yes. तो सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो है, लेट अस से 71,000 व्यूज वाला, या लेट अस से 78,000 व्यूज का, ये मैडम का वीडियो मुझे यूज करना है. तो मैं इनके लिंक पे जाऊंगी, मतलब मैंने इनको क्लिक किया. ऑलराइट, क्लिक किया. ये करने के बाद आप क्या देखते हैं कि ये जो लिंक है, ये सारा पैसा ये लिंक, ये जो लिंक है ये मेरे काम की है. तो ये लिंक को मैं कॉपी करूंगी. ओके, यहां तक सभी का क्लियर हो गया? यस यस. हाँ जी, ना जी. Yes, ma'am. Yes. Yes, yes, yes. अब मैं Yes, yes, yes. अब मैं यहाँ पे ये जो लिंक ऑप्शन है, ये वाला जो लिंक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं नीचे, ये लिंक ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने. ये लिंक ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ पे आके उस लिंक को पेस्ट करूंगी और ऐड लिंक पे क्लिक करूंगी. अब ये तीसरा वीडियो आ गया. हेलो, कैन वी सी थर्ड वीडियो? यस, हेलो. Yes, ma'am. I Yes, am. ma'am. Yes, ma'am. यस. तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी साइट का वीडियो आपको पसंद है, तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहां के वीडियो को ऑन कीजिए. लेटेस्ट से ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इस वीडियो को क्लिक किया. क्लिक करने के बाद ये जो URL लिंक है ऊपर वाली, जहां पे मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, आप इस लिंक को सिंपल कॉपी कीजिएगा. कॉपी करने के बाद आपको क्लास वर्क में आना है. क्लास वर्क में आने के बाद लिंक करके एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है. वहां पे क्लिक करने के बाद
आपको इस लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको ऐड लिंक पे क्लिक करना है। यस, आ गए हमारे पास 4 वीडियोस अवेलेबल है। कैन वी सी ऑन द स्क्रीन? हेलो एवरीवन। Yes, yes, ma'am. यस, 2 दिख रहे हैं Yes, मैम, 2 दिख रहे 3 हैं दिख मैम, रहे हैं, 3 दिख 3 रहे दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। हाँ 3 हाँ, यूट्यूब 3 यूट्यूब पे है, तो ये गूगल ड्राइव ये कंप्यूटर का है। हैं। ड्राइव पे बराबर है। ड्राइव Yes. हाँ, ड्राइव का आइकन भले ही आपको दिखाई दे रहा है, ओके, लेकिन वो है अपने कंप्यूटर का ही। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन यूज कर रही हूँ मैं, ड्राइव से वीडियो अपलोड करूंगी। तो शुरू करें हम। ड्राइव बटन पे क्लिक करें, यस और नो? हाँ जी, ना जी? हाँ जी, ना जी। Yes, yes, madam. यस, हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे। अब हम अलग तरीके से वीडियो इसमें ऐड करने वाले हैं ना, तो अब मैं माई ड्राइव में जाऊंगी। माई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है वीडियोस के नाम का। अब वापस से मैं ये लिस्ट आइटम को क्लिक करूंगी, क्योंकि लिस्ट मुझे देखनी पड़ेगी कि कौन से नंबर का वीडियो है, कौन से का नहीं है। तो मैं पहले लिस्ट को ऑन करूंगी। क्या मेरा स्क्रीन आप सभी के सामने अवेलेबल है? Yes, madam. यस। यस तो यस मैम। अब इसमें से जितने भी वीडियोस आपको चाहिए, 1 2 3 4 जितने भी चाहिए, आप सिंपल उन सारे वीडियोस को सिलेक्ट कीजिए, या फिर 1 2 वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, जितनों को करना है। फाइनली इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। दोनों हो गए, आपके वीडियोस आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, पेज 1 2। कैन वी सी थर्ड एंड सेकेंड वीडियो? यस और नो? Yes, 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 ma'am. नाउ सपोज मैं इसमें से एक हटा देती हूँ, एक ही रख रही हूँ। ओके, कितने वीडियोस हो गए? एक जो हमने कंप्यूटर से एंटर किया, दूसरा जो हम यहाँ पे यूट्यूब में गए, ओके, और यहाँ पे हमने टाइप किया था मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स, फाइन। और यहां से हमने एक वीडियो सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद ऐड वीडियो पे क्लिक किया था। तो ये दूसरा वाला हमने टाइटल को सर्च करके यूट्यूब से उठाया। तीसरा और चौथा हमने कैसे यूट्यूब से लिया? हम यूट्यूब में गए थे, यहाँ पे हमने टाइप किया था मार्केट के बारे में, फिर हम इस मैडम के ये जो वीडियो है, सबसे पहला वीडियो, तो हमने इसको क्लिक किया था। क्या आप सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं यूट्यूब का? यस। क्लिक करने के बाद हमने ये URL को कॉपी किया था। यस, प्रीति मैम, इज द स्क्रीन विजिबल? हेलो स्टू यस मैम। या यस तो ये हमने यहाँ से यहाँ से URL को कॉपी किया, एंड फाइनली हम टीचर के पैनल में जाएंगे। ओके, ये टीचर का जो पैनल है, जहाँ पे आप ऑलरेडी अपडेट कर रहे थे सारी चीजें, क्लासरूम, सॉरी, ये टीचर का पैनल है ना। ओके, जस्ट अ मिनट। ये टीचर का पैनल है। ओके, ये टीचर का पैनल था हमारे पास, और हमने यहाँ से ये लिंक पे क्लिक किया था और इस लिंक को कॉपी पेस्ट किया था। तो देखिए आपने कितने तरीकों से मटेरियल ऐड किया। पहले आप अपने कंप्यूटर से गए और एक PDF फाइल अपलोड की या वीडियो फाइल अपलोड की। दूसरा, आप YouTube में गए, आपने टाइटल लिखा और आपने उस वीडियो को सिलेक्ट किया और सिंपल ऐड वीडियो करके आपने वीडियो ऐड किया। तीसरा चौथा ऑप्शन, आप सिंपल YouTube पे गए, आपको जो पसंद आया उसको आपने ओपन किया वीडियो को, और उसके URL को आपने कॉपी किया, एंड फाइनली आप लिंक में आके उसको पेस्ट किए और ऐड लिंक किए, तो वो सारे वीडियोस ऐड हो गए। फिर नेक्स्ट हम गूगल ड्राइव में गए, हमने ड्राइव के ऑप्शन को
एक्सेस किया एंड फाइनली हमने वीडियो को वहां से अपलोड किया। तो मटेरियल को अपलोड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑप्शन जो भी आपको पसंद आता है। अब एक बार आपने मटेरियल ऐड कर दिया, ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू कैन क्लिक ऑन पोस्ट। You can click on post. I'm closing this drive wala option. Just a minute. रिंकी मैडम, Yes, ma'am. ये स्टेप होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे 10 मिनट का और 5 मिनट का। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हम इसको पोस्ट करेंगे फाइनली। Just give me a minute because यहाँ पे स्क्रीन होल्ड हो चुका है। Just a minute. I'll refresh it. Okay, now we are ready to post. जैसे ही आप पोस्ट करेंगे, स्टूडेंट विल सी दिस मटेरियल इन देयर स्ट्रीम्स इमीडिएटली। सिंपली क्लिक ऑन पोस्ट। सो नाउ व्हाट यू कैन सी इज, एज ए स्टूडेंट, कि माय टीचर हैज अपलोडेड द मटेरियल एट 15:12, दैट इज 3:12, and now I can go through any of the video which is provided to me by my teacher. So this video is created by me on Zoom platform. ये वीडियो मैंने Zoom platform पे डेवलप किया है, बिल्टअप किया है, बनाया है खुद की तरफ से। और हमारे कॉलेज में जो ये पैटर्न चलता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, हम सभी के लिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ये इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट अ वीडियो व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मी। ओके, ये पीपीटी है, पीपीटी को शेयर करके मैंने वीडियो बनाया है, आप सभी देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये आसान हो जाएगा कि उनको ई कंटेंट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गूगल क्लासरूम में सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है। अब अगर एक बच्चा आपकी क्लास में एंटर होता है और वो क्लास वर्क में जाता है, तो उसको सारी चीजें सिंक्रोनाइज दिखेंगी, सिलेबस दिखेगा, स्टडी मटेरियल दिखेगा, ओके, देन उसको वीडियोस दिखाई देंगे। ये देखिए, वो सिलेबस में जाना चाहता है तो वो सिलेबस की फाइल में जाएगा, उसे स्टडी मटेरियल सिर्फ रेफर करना है पीडीएफ फॉर्म में, वो सिर्फ पीडीएफ देखने आएगा। उसे सिर्फ वीडियोस देखने हैं और वीडियोस में भी यूनिट 4 के वीडियोस देखने हैं तो वो यूनिट 4 के वीडियोस देखने आएगा। ऑलराइट, अगर उसको यूनिट 3 के वीडियोस देखने हैं तो टीचर क्या करेगी, क्रिएट पे जाएगी, मटेरियल पे जाएगी, मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे टीचर हेडिंग देगी यूनिट 3। यूनिट 3 का जो भी नाम है, लेट अस से प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये यूनिट 3 का अगर नाम है तो ये किस प्रकार का मटेरियल है, वीडियो मटेरियल है या स्टडी मटेरियल है? स्टडी मटेरियल है। अब टीचर चाहती है कि मैं इसमें अपना स्टडी मटेरियल अपलोड ना करूं, मैं बच्चों को आर्टिकल्स दूं पढ़ने के लिए और वो उसको पढ़ें और प्रिपेयर करें, या गूगल पे कोई अदर ट्यूटोरियल्स हैं उसके बेसिस पे वो ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं सिंपली बच्चों को एक और चीज दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, अगर मैं ट्यूटोरियल्स कोई लिंक देना चाहती हूँ तो मैं पहले ट्यूटोरियल्स की लिंक फाइंड आउट करूंगी उन बच्चों के लिए इन द फॉर्म ऑफ एनसाइक्लोपीडिया और एनी ट्यूटोरियल्स पॉइंट की जो साइट है वो। तो सिंपल, मैं ये साइट पे आने के बाद, जैसे मैंने यूट्यूब में अपनी लिंक को कॉपी पेस्ट किया था,
ठीक उसी प्रकार से मैं इस लिंक को भी कॉपी करके वहां पे बच्चों को दे सकती हूँ। तो जिस प्रकार से आपने अभी एंटर किए अपने वीडियोस, ओके, जिस प्रकार से आपने अभी अपने वीडियोस को एंटर किया है यहाँ पे, उसी प्रकार से आप और भी मटेरियल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है गूगल की, तो आप सिंपल उसकी लिंक को कॉपी कीजिएगा, पीडीएफ फाइल को। उसको कॉपी करने के बाद जहां भी आपको चाहिए, आप लिंक ऑप्शन के थ्रू उसको पेस्ट कर सकते हैं। So can we see the other topics, Preeti ma'am, after the break? Yes. यस Hello, मैडम। ma'am. Yes. पार्टिसिपेंट्स मीटिंग को लीव मत करिए मैडम। कितने टाइम का ब्रेक देते हैं? 10 मिनट का? Yes, yes. 10 minutes या break. इट्स 3:17। Yes. We can give them 13 minutes break. No issue. ठीक है ना मैम, शुरू करेंगे अपन। 10 मिनट का ब्रेक Yeah. देते हैं, उसके बाद वी विल And स्टार्ट। so far जितने भी topics हुए हैं, if they have doubts, queries, they can get in touch also. No problem. हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू। मीटिंग में बने रहिए आप, मीटिंग को लीव मत करिए।